Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal, your biology tutor. So today's topic is a new chapter, that is transport in plants. Plants have to move various types of substances. That movement is called as transport. Okay, and what type of substances they have to move? That is gases, minerals, water, hormones, photosynthetes and organic solutes. So these are some substances that plant have to move or transport. So basically there are short distance transport and long distance transport. Okay, नाम से पता चल रहा है short distance यानी कि कुछ मतलब कम distance पे जो transport हो रही है. Of course that is from one cell to another cell, or you can say that from one tissue to another tissue. All right. Okay, and what about long distance transport? So like water transport from roots to the top of plants, or photosynthesis, that is from leaves to the tips of roots. So that type of movement or transport is long distance, and cell to cell is short distance. Okay, now there is a question, what is the means of transport? There are buses, trains. No, in plants these are not the things. Here what are the means of transport? There are different means of transport. There are diffusion, osmosis, active transport, ion channels. So basically passage of materials into and out of the cells is carried out by a number of methods, and these are some methods for the transport. Okay, so first one is diffusion. So let's begin with the first type of transport, that is diffusion. Okay, so what is diffusion? Diffusion is movement of substances from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Means सपोज एक सब्सटेंस मतलब सब्सटेंसेस जो हैं एक रीजन पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब उनकी अमाउंट ज़्यादा है, और दूसरा रीजन जहाँ उनकी अमाउंट कम है या फिर उनकी अमाउंट अभी ज़ीरो है, तो वो कहाँ मूव करते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टू एक्वायर अ इक्विलिब्रियम, टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू मूव टुवर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, that is equilibrium. Okay, and this type of movement in case of diffusion, this is a passive movement. What is passive movement? Where there is no involvement of energy, and this is a type of slow movement. Like it's not fast कि थोड़ी सी देर में ही movement हो गया. It takes time because movement होगी क्योंकि यहाँ कोई energy use नहीं हो रही है, तो of course ये जो movement है वो slow है. It occurs along the concentration gradient. What is concentration gradient? Gradient का मतलब होता है difference. अब देखो concentration gradient मतलब concentration का difference. मैंने बोला कि एक पॉइंट पे concentration ज़्यादा है, एक पॉइंट पे concentration कम है, यानी कि इन दोनों में क्या है? एक concentration difference है, एक gradient create हुआ है जिसकी वजह से movement हो रही है. अब जो ये movement है ये concentration gradient के along हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ हो रही है. अगर ये कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होती है तो अब हम बोलते हैं कि इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेडियंट. बट नाउ हेयर इन केस ऑफ डिफ्यूजन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो मूवमेंट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होती है, स्लो होती है, प्लस पैसिव मूवमेंट होती है. दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिफ्यूजन. देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे देखो कैसे मूवमेंट होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बाहर से अंदर कैसे मॉलिक्यूल एंटर करता है. यहाँ सेल होता है, सेल पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बता रही हूँ मैं. तो ये आउटर, ये कह लो ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. यहाँ बाहर का एनवायरनमेंट होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन होगा, अंदर क्या है? इंट्रा सेलुलर रीजन है. तो यहाँ पर आउटसाइड टू इनसाइड सब्सटेंसेस एंटर कर रहे हैं. आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड कम है. दैट्स वाई द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन पासिंग दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन. Again I am telling you, this is a movement from higher to lower concentration. It is passive, slow and along the concentration gradient. Okay, clear? Now let's move to the next movement, that is
I'm telling you a type of, or you can say that a special diffusion, that is a facilitated diffusion. Again, it's a very important diffusion type, that is facilitated diffusion. Here you can see the diffusion of hydrophilic substances along the concentration gradient through fixed membrane transport protein without involving energy expenditure is called as facilitated diffusion. डेफिनेशन से एक चीज तो पता चल गई, यहाँ पर भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पर यहाँ पर एक अलग है पॉइंट सिंपल डिफ्यूजन के बिहाफ पे अगर हम देखें, वहां पर क्या होता था, नॉर्मली वहां कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं था, बट आपने इस डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पर एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है. येस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम होगा. पॉइंट नंबर 1 वही रहेगा, एनर्जी यहाँ पर भी यूज नहीं होगी. ओके, बट यहाँ पर एक फिक्स मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होगा जो यहाँ पर डिफ्यूजन करवाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस की. अब ये हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक नाम तो सुना होगा, बट ये है क्या? हाइड्रोफिलिक नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर एंड फिलिक वर्ड इज लविंग, यानी कि वाटर लविंग सब्सटेंसेस. हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हम इनका डिफ्यूजन यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन सब का यूज क्यों रहा है? देखो, इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और समझने की जरूरत है. जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? लिपिड प्रोटीन की लेयर होती है, लिपिड बायलेयर होती है. वहां पे ये जो आपने मॉलिक्यूल्स अभी पीछे भी देखे होंगे, ये क्या होते हैं? ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इसमें ये कोई डिजाइन नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक चीज को डिनोट. ये सर्कल क्या है? इट्स अ ग्लिसरॉल हेड. इट इज अ ग्लिसरॉल हेड एंड दीज टू थिंग्स, दीज आर टू फैटी एसिड टेल्स. ठीक है, फैटी एसिड टेल, और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मिलके बनाता है एक लिपिड मॉलिक्यूल. अब जो ये लेयर है, ये लिपिड बाय लेयर है, ये लिपिड्स बने हुए हैं बीच बीच में, ये सारे लिपिड्स बाय लेयर है, बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे ये लेयर बनी है बाय लेयर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. यहाँ पे होता क्या है कि जो ये हेड होता है, ये हेड हमारा होता है हाइड्रोफिलिक. ओके, बट ये जो टेल होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक. अब एक चीज आती है, जैसे ही सपोज हमारे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसे बायलेयर में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसकी डिटेल हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है. अब यहाँ से मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, सपोज ये मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है तो ये यहाँ तक तो आ गया, बट ये इस पॉइंट को, ये इन टेल को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो फोबिक है, हाइड्रोफोबिक है ना, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है. अब इस चीज को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है जो इन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस को मूव करवा सके. अब समझ आई? तो इस डिफ्यूजन में क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट through this fixed membrane transport protein without involving energy expenditure, that is a facilitated diffusion. Okay, this diffusion is very specific as it allows cell to select substances for uptake. It is also specific. Okay, अब देखो द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. अब क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. यहाँ पे क्या है? द मेम्ब्रेन प्रोटीन टेकिंग पार्ट इन दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप दैट इज परमिएजेस. ओके, देखो ये क्या थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी देखा लिपिड मॉलिक्यूल्स, बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट है, दैट प्रोटीन इज अ चैनल प्रोटीन. इस प्रोटीन के थ्रू देखो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ एंटर कर रहा है. इस बायलेयर की तरफ नहीं, बायलेयर से नहीं हो सकता क्योंकि बायलेयर तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी, इसकी एंट्री को हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के. अब इस हाइड्रोफिलिक को एंटर तो करना है, कैसे करेगा? इस चैनल प्रोटीन के. एंड दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, बस एक चैनल प्रोटीन यूज हुआ है. ठीक है, ओके. अब देखो, some proteins allow transport only if two types of molecules move together. अब कुछ प्रोटीन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट तभी करवाते हैं किसी भी चीज की जब दो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करें. मतलब एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ऐसे मेम्ब्रेन है,
तो वो ट्रांसपोर्ट ये तभी करवाएगा जब एक मॉलिक्यूल के साथ साथ एक और मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट हो। जब एक मॉलिक्यूल के साथ एक और मॉलिक्यूल यानी कि 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो उस प्रोटीन से, तभी वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, उसे हम को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी टाइप्स है कि बोथ द मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। जैसे यहां देखो, ये मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये H+ और ये एनायन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज अ सिम्पोर्ट। यहाँ पे H+ और कैटायन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज द एंटीपोर्ट टाइप, बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। एंड एक और है जिसके अंदर इस प्रोटीन के थ्रू वो सिंगल मॉलिक्यूल यानी कि व्हेन अ मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो हर एक प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो चैनल प्रोटीन्स हैं, हर एक प्रोटीन्स की एक प्रॉपर्टी होती है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ तभी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे जब 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ मूवमेंट करेंगे, दैट इज को ट्रांसपोर्ट, जिसमें सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट आती है। जबकि यूनिपोर्ट में उसने ये कह दिया कि चलो एक मॉलिक्यूल भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट इज यूनिपोर्ट। तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये सभी टाइप्स हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखा जो ऐसे मॉलिक्यूल्स को एंटर करवा रहा है जो नॉर्मली नहीं हो सकते हैं। पर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि आप कह सकते हो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं हुई है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन कैरियर चैनल प्रोटीन्स यूज हुए हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन था, इसमें सिर्फ यही है कि मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी तो फैसिलिटेटेड में भी यही, यहाँ एनर्जी भी यूज नहीं होगी, यहाँ कोई चैनल कैरियर प्रोटीन्स यूज नहीं होंगे, इट्स अ पैसिव थिंग। और वहाँ क्या था, चैनल प्रोटीन, बस यही डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने एक टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिया, दैट इज डिफ्यूजन, जिसपे हमने सिंपल और फैसिलिटेटेड दोनों डिफ्यूजन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद द remaining means of transport, osmosis, active transport and channels. So if you have any doubt in this particular topic, put your doubts in the comment section. Thank you. Thanks for watching.